First of all, thank you so much. Time लेने के लिए. The first question. ये नाम का क्या मतलब है? भाई नाम का एक्चुअली कुछ भी मतलब नहीं है. मेरे डैड ने एक नॉवल पढ़ी थी जब मैं बहुत छोटी थी. उनको एक कैरेक्टर नाम बहुत अच्छा लगा तो उन्होंने सोचा कि नहीं यार यही नाम रखते हैं और तब से यही नाम चल रहा है. डैड के बारे में आपने जिक्र किया. Let's get into that. You come from an army background. क्या डिफरेंस मिलता है जब खुद को अभी देखते हो और बाकी सिविलियंस बच्चे को देखते हो? आई थिंक अडेप्टेबिलिटी. बचपन से ही क्योंकि अलग अलग पोस्टिंग की लोकेशंस देखी है. हर 2 साल में दोस्त चेंज हुए. किसी स्कूल में टीचर के फेवरेट थे, किसी स्कूल में टीचर के फेवरेट नहीं बने. Studied in KV. All throughout my life in KV, different KVs all over India. So I think adaptability is something which comes with it. And then the conditioning that we get. You know, I remember when I was in school, when I was young. तो संडेज को बच्चे कहते थे कि हम तो मूवी देखने जा रहे हैं, हम तो पिकनिक जा रहे हैं. आई यूज टू ड्रेड संडेज बिकॉज संडे को क्या होता था, पापा घर में और हम जाते थे रनिंग के लिए. अच्छा. So मुझे लगता था स्कूल संडे को भी क्यों नहीं होते हैं कि हम संडे को भी अगर स्कूल चले जाएंगे तो इस रनिंग से बच जाएंगे. बट देन इन अ लॉन्ग वे इफ यू सी इट हैज हेल्प्ड मी सो मच. जब एयरफोर्स में सिलेक्शन हुआ, आई सीन सो मेनी स्टूडेंट्स, सो मेनी कैडेट्स struggling with physical activities and everything, but it was a cakewalk for me because बचपन से ही उसकी हमारी तो ट्रेनिंग चल रही थी. बचपन कहाँ बीता है, कौन सी जगह? Because obviously your father was being transferred in many of the restrictions by your cities. So I was we had been to Jammu and Kashmir, to You were born there. Bathinda. Oh, Punjab. हम सब आदि सरदार भी. So But basically you said you were Pahari. yes. From Uttarakhand. So when I was around, I was in 8-9 standard. That was the time when my dad retired, and उसके बाद no, he retired. Okay, get it. He retired, and since then we have been in Dehradun. So for me, मैं अपने आप को पहाड़ी बोलती हूँ because you know जो building blocks हैं 9th, 10th, 11th, 12th जो बच्चे का होता है graduation. Then I did my NCC, lot of national level camps through that. So सब कुछ मैंने उसी में देखा. So मेरे लिए देहरादून is everything. Then from Dehradun you shifted to LA. You're after 11, 12. देहरादून थ्रू आउट देहरादून में किया. एंड आई वाज लकी इनफ कि जब ग्रेजुएशन का थर्ड ईयर का रिजल्ट आने से पहले एयरफोर्स आपको अलाउ करती है कि आप अप्लाई कर सकते हैं. सो बिफोर आई कुड गेट दैट रिजल्ट इन हैंड, आई वाज इन एयरफोर्स एकेडमी. So what you get in graduation with something? साइंस स्टूडेंट. Okay. So Not an engineer. not an engineer. Okay. Yes. So BSc. BSc. Botany, chemistry and So ये मतलब कि फैमिली प्रेशर था फोर्स में जाना कि कुछ देखा था फिर आना है? I'll tell you, you know, my elder sister is in forces, and there my younger brother is also in forces. It was never told to us कि life में क्या करना है, and I'm not mincing my words. It was just always it was told to us कि कुछ कर लेना, क्या करना है वो हमने खुद फिगर आउट किया. And देहरादून आपको पता है कि यू नो आप बाहर निकलो और आपको IMA कैडेट्स दिखते हैं सैटरडे संडे को आप देखो, तो दैट आल्सो एड्स अ लॉट ऑफ fascination towards forces, respect towards forces, and when you look at them, they don't look very happy at that time when they are going through training. They are all tanned, zero cut, pakra cut और मुर्गा cut, क्या उसको मजाक में सब लोग बोलते हैं. But you see that how much of hard work they are doing to sustain that, to go through that, and then one day they will, wear their stars. So that is something which is very motivating about such places where you see defense-related institutes and people who are joining defense. कितने इसका मिल किया आपने? 2018 I took retirement. So I was an SSC officer. So short service commission officer. You can serve for 10 years. 10 plus 4 years आपको आगे कंटिन्यू करना है या नहीं करना है वो आपकी चॉइस होती है. एंड ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन AR, योर अप्रेजल रिपोर्ट, अगर वो भी सपोर्ट करता है. बट आई डिसाइडेड दैट आफ्टर 10 years आई वांटेड टू ट्राई अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड एंड सी अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड विद दैट. सो आई What's the other side of the world? Other side is, armed forces life is, I would say it is little confined into a space. It is very safe. At the same time, it gives you immense amount of exposure.
सेफ्टी के साथ साथ, बट बाहर की जो दुनिया है वहाँ पे यू आर फ्री टू ट्राई न्यू थिंग्स, आई वुड से. So once you're serving in armed forces, when you're serving in armed forces, you cannot do any other thing. आपके पास इनफैक्ट टाइम ही नहीं होता है कि आप कुछ और करो. आप अपनी फैमिली को भी टाइम दे दो, बहुत बड़ी बात है. बट रिटायरमेंट के बाद आई डिसाइडेड दैट आई ट्राई डिफरेंट फील्ड्स. सो आई स्टार्टेड गोइंग ऑन न्यूज चैनल्स. दे इनवाइटेड मी बिकॉज आई वाज अ फाइटर कंट्रोलर. सो हमारा जो न्यू एक्विजिशंस है, फाइटर हेलीकॉप्टर्स जो हमने यूएस से लिया एंड बाकी कंट्रीज से, सो उसके बारे में कई न्यूज़ चैनल्स ने मुझे ये बात करने के अपने पास इनवाइट किया. आई वेंट देयर. देन आई ऑल्सो डिड 2 years of corporate experience with one startup. I have done assignments with the Women Premier League, जहाँ पे मैंने टेली कैपिटल में women team के साथ काम किया है. And also, of course, I've helped few production houses like Marflix, जिन्होंने फाइटर मूवी बनाई है, and Renaissance Pictures, जिन्होंने ऑल पैलेट टाइप मूवी बनाई. वहाँ मैंने एक्टर्स को ट्रेन किया है because it was Air Force based. सो ये सब ट्राई करना था, और आई वुड से ये सब ट्राई करना किस्मत में था. तो इसलिए मैंने फौज से बाहर आके कभी किसी अपॉर्चुनिटी को मना नहीं. मैंने अभी जब आपसे बात कर रहा था ना, तो लाइक मोस्टली पीपल नो कि आई हैव डन द पॉडकास्ट विद द ब्यूरोक्रेट्स, कि वहाँ के एक एक्सपोजर मुझे मिला कि उनके लाइफ में क्या होता है. एंड देन आई मेट few of the videos from the armies and the CRPs. But I think you all are people who are very open arms. मैं किसी को discriminate या उसमें नहीं चाहता हूँ. I get it. Why it like this? क्यों होता है? Forces people या people in the uniform, like people mostly in this forces uniform, ऐसा क्यों होता है? इतना मतलब खुले दिल के क्यों होते हैं? खुले दिल के, I think because of our experiences. See, हमारा ऐसा नहीं है कि मैं अगर एक मेरी पोस्टिंग आ गई है, सो मैं 10 साल अपने वहीं निकालने वाली हूँ. हर 2 साल में आप एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में चले जाते हैं. और जब एक ऑफिसर की पोस्टिंग आती है या एक एयरमैन की पोस्टिंग आती है, सिर्फ वो नहीं जाते हैं, उनकी पूरी फैमिली उनके साथ मूव करती है. उनके बच्चों के स्कूल चेंज होते हैं. सो आपको उतना अडेप्टेबल होने की ज़रूरत है कि आप अपने आसपास के जो न्यू सराउंडिंग है उनके साथ फटाफट पेस मैच करें और अडेप्टेबल होकर सर्वाइव करें. सो वो करने के लिए आई थिंक वी आर ट्रेन टू डू दिस. वंस यू वेयर यूनिफॉर्म, वेदर यू आर मेल और फीमेल, वो चला जाता है. वेदर विच पार्ट ऑफ कंट्री यू आर कमिंग फ्रॉम, दैट गोज. कास्ट, रिलीजन, नथिंग मैटर्स. सो उसकी वजह से हमारा कंडीशनिंग ने हमको ऐसा बना दिया है कि व्हेन वी मीट समवन वी डोंट सी देयर बैकग्राउंड. फोर्सेस में रॉयल फैमिली से भी लोग आते हैं एंड विलेजेस से भी लोग आते हैं. बट अगर आपने एक कॉर्पोरल, सार्जेंट, JW, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, स्क्वाड लीडर की रैंक पहनी है, तो आप वो हैं उनके लिए. आपका बैकग्राउंड क्लोज हो जाए. सो ये ट्रेनिंग ही है हमारी जो हमको ऐसा बनाती है. मैंने एक और चीज नोटिस किया, मेरे कुछ दोस्त हैं जो फोर्सेस से बिलोंग करते हैं, आई मीन देयर पेरेंट्स कम फ्रॉम द फोर्सेस. जैसे हमारा होता है, मैंने क्लास KG से 12 एक ही स्कूल में पढ़ेंगे, लॉन्ग टर्म फ्रेंड्स. बट वो जो मेरे रूममेट था कॉलेज में ना, हिज फादर वाज आल्सो इन द एयर फोर्स. तो उन्होंने बोला कि यार मैंने जिंदगी में पहली बार तेरे साथ किसी एक फ्रेंड है जिसके साथ मैंने 4 साल एट अ लॉन्ग टाइम वी हैड अ फ्रेंडशिप. ही वाज, वो चीज महसूस हुआ कभी लाइफ में कि बहुत बार होता है. इनफैक्ट अब जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है वो भी वो चीज फील करते हैं. जो अलग पार्ट होता है ना, जैसे हम लोग देखते हैं कि एक जगह रहना, होते भी अपने आप को जूझना चीजों कि आप लोग, मैं भी कह रहा हूँ कि आप लोग नहीं जूझते, बट आप लोग एक सिक्योर लाइफ पे पले पड़े. अचानक जब मेरे वो दोस्त से देखा, क्योंकि उसने की 12th तक और एक सिक्योर लाइफ बिलोंग किया, पहली बार कॉलेज में घर से बाहर आया, उसके लिए थोड़ा सा वक्त लगा. मेरे लिए वो इतना नहीं लगा क्योंकि मुझे तो बैटिंग नहीं मिली बचपन से, मुझे लड़ाई करना पड़ा. मैं बल्कि था, उसके लिए मुझे मोटापे पे लोगों ने गालियां दिया, तो उस पे तो मैं यूज्ड टू हो गया था. उसके साथ वो चीजें नहीं हुआ. तो ऐसा डिफरेंस वाला लड़ाई होती है अचानक से. Honestly, जब भी आपका कोई environment change होता है, you have to go through those changes and you have to make plan for yourself कि अब क्या करना है. So फौजी लेंगे अगर मैं आपको बताऊँ थी, फौजियों के पॉइंट ऑफ व्यू से वो चैलेंजेस हम ऑपरेशनली देखते हैं.
अगर मैं मान लीजिए कहीं जोधपुर जैसी जगह पे पोस्टेड जहाँ टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस जा रहा है, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस है, वहाँ आपको अपने रडार की सेफ्टी देखनी है, वहाँ आपको अपने मिल्क की सेफ्टी देखनी है, उनका वेलबींग देखना है, अपना देखना है, अपने घर में अपनी फैमिली को भी ये सिक्योर एनवायरनमेंट देना है कि ठीक है एडवर्स कंडीशंस में भी यू विल बी टेकन केयर ऑफ। वहीं आप नेक्स्ट डे 2 साल के बाद आप कहीं से उठा के आपको कहीं दूसरी जगह कर देंगे जहाँ आपको सिर्फ वेदर वाइज चेंजेस नहीं अकोमोडेट करना है, आपको ऑपरेशनल चेंजेस भी अकोमोडेट करना है, क्योंकि जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं आपका नेचर ऑफ वर्क ऑल्सो चेंजेस। सो ऐसा नहीं है कि आप एक बार पढ़ाई करके ऑफिसर बन गए और उसके बाद बात खत्म। हर साल, हर महीने, हर दिन पढ़ाई करते हैं, एग्जाम्स देते हैं, अपनी वर्क प्रूव करते हैं, अपनी रैंक की वर्क प्रूव करते हैं, एंड देन वी कंटिन्यू एज यू नो ऑन एनी ग्रुप पोर्टफोलियो। सो इट्स नॉट इजी। सो ऑपरेशनल चैलेंजेस हम हर दिन देखते हैं। एक दिन हम देख रहे हैं कि हम नॉर्मल सिनेरियो है जहाँ लोकल फ्लाइंग चल रही है, आपको नॉर्मल मिलिट्री एयरक्राफ्ट कंट्रोल करने वहाँ पर डे टू डे एक्सरसाइज करें। नेक्स्ट आप देखोगे एक अनआइडेंटिफाइड एयरक्राफ्ट बॉर्डर क्रॉस करके अंदर आ रहा है, उसकी ड्रिल लगे हो। नेक्स्ट आप देखोगे आपका रेडार डाउन हो गया, बट उसके साथ आपको सेफ एनवायरनमेंट रखना है, आपको सर्विलेंस ऑन रखना है, वो स्ट्रगल देखोगे। नेक्स्ट आप देखोगे कि आपके यूनिट में कोई फंक्शन हो रहा है, आप उसके ऑफिसर आईसी हो, आपको इंश्योर करना है कि यू नो सबका वेलबींग होना चाहिए, गेस्ट अच्छे से आने चाहिए, उनका टेक केयर होना चाहिए। तो सी दी डाइवर्सिटी ऑन द टाइप ऑफ जॉब। No day is same. Every day we see different challenges in our lives, operationally and socially both. सारे लोगों को जानना है आपके रूल के बारे में। So बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज जब भी हम एयरफोर्स के बारे में बात करते हैं सब उनके दिमाग में एक ही चीज़ आते हैं कि अगर एयरफोर्स से हैं तो पायलट, बट उनको छोड़ के दे आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स जो एक ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाते हैं। एंड आई वाज अ फाइटर कंट्रोलर का मेन रोल होता है बहुत ही लेवल लैंग्वेज पे बताते ताकि सब लोगों को समझ आए कि अगर कोई एनिमी एयरक्राफ्ट अंदर आ रहा है, सो फर्स्ट पर्सन टू स्पॉट दैट वुड बी अ फाइटर कंट्रोलर, बिकॉज वी हैव सिस्टम्स जहाँ पे 13 से 14 रडार और मे बी उससे ज़्यादा मिलकर एक कंबाइंड पिक्चर देते हैं जिसपे हम एनी एयरक्राफ्ट एंटरिंग आर क्रॉसिंग आर इंटरनेशनल सॉइल, अगर वो अनआइडेंटिफाइड है और बिना परमिशन के आ रहा है, we identify that as hostile or unknown aircraft and then we take action. Then comes rest of the aircraft को scramble कराना, वहाँ लेके जाना, positioning कराना, firing करवाना और whatever process is required, then that is done. But initial identification and taking action is initiated from fighter controller's side. So you crack AFCAT, right? फिर उसके बाद क्या होता है? So AFCAT आउटपुट करते हैं, उसके बाद हमको कॉल लेटर आता है, SSB होता है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है अलग अलग जगह पे, सो आपको वहाँ पे इनवाइट किया जाता है, आप आ जाते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं। नहीं, वो डिफरेंशिएशन कैसे होता है? जैसे आपने बोला ना आप फाइटर कंट्रोलर है, वही शायद और डिपार्टमेंट जाएंगे। अच्छा, ओके। सो इनिशियली फॉर ग्राउंड ड्यूटी जब आप करते हैं, यू डोंट से दैट आई वांट टू बिकम अ फाइटर। जब आप वहाँ जाते हैं आपकी 6 मंथ की बेसिक ट्रेनिंग होती है एयरफोर्स एकेडमी में जाके, विच इज हैदराबाद। उसमें सबका होता है, वहाँ आपको सारी ब्रांच, वहाँ NDA से जो कैडेट्स हैं जो फ्लाइंग ब्रांच के हैं तो वहाँ आते हैं, टेक्निकल ऑफिसर वहाँ जाते हैं, ऑल ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच वहाँ जाती है, नेट ऑफिसर जो वेदर रिलेटेड फोरकास्ट करते हैं ऑफिसर्स, दे गो देयर। सो एवरी कैडेट फ्रॉम ऑल ब्रांच कम्स टू हैदराबाद एकेडमी। वहाँ जाके एडम ब्रांच के जो कैडेट्स होते हैं उनका एग्जाम होता है उस एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बेसिस पे देखा जाता है कि वेदर उनको फाइटर कंट्रोलिंग देना है या एडीसी देना है। इट इज प्योरली, इसमें कोई ये नहीं है कि बेस्ड ब्रांच इज इम्पॉर्टेंट और नॉट इम्पॉर्टेंट, बेस्ड ऑन केपेबिलिटी ऑफ द कैडेट कि वो किस चीज़ में अच्छा है, उनको वो ब्रांच ट्रेनिंग के दौरान। और जब वो 6 महीने की ट्रेनिंग हो जाती है फिर वो स्पेसिफिक ट्रेनिंग होती है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स, दे वो टू देयर रैंक वाइज नहीं होता। नो, दैट टाइम दे आर कैडेट्स। जब हम ये ट्रेनिंग सक्सेसफुली कर लेते हैं एंड जब देखते हैं हमारे इंस्ट्रक्टर्स की दिस कैडेट हैज द कैपेबिलिटी, इज परफॉर्मिंग वेल, फिजिकल हो या हमारे स्टडीज रिलेटेड हो, देन दे टेल एंड साइन दैट डॉक्यूमेंट कि ओके कैडेट इज क्लियर टू कमीशन एंड एन ऑफिस। तो लाइक हाउ वाज द ट्रेनिंग इन द मिशन? Training was very tough. Training was very hectic, but You didn't say मैंने जितने भी forces को मिले ना, they always say the hell of a training. You didn't say that line. I'll tell you why.
Because maybe when I was going through that, I would have said it. Now, once it is done, and when you look back, you have such beautiful, lovely memories of that training. I think आधे से ज़्यादा फौजी lessons आप अपनी ट्रेनिंग में ही सीखते Yes. फिर वो वाले बताओ, मैं जो हम बात कर रहे थे चाय की का. हाँ. So, जैसे आप बोल रहे कि क्या lessons आपने सीखे थे, to be very basic thing. बहुत लोगों से मैं इसके बारे में बात करती हूँ. But then हम कॉर्पोरेट में कितना पैसा खर्च करके हम लोग टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज कराते. हमारे एकेडमी में मेरी फर्स्ट टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज क्या थी. हम सारे कैडेट्स को दिन भर के रगड़े के बाद बुलाया गया, बैठाया गया कि अच्छा ठीक है अब आप तो चाय पीने के टाइम है. चाय पीने के टाइम पर हमने देखा कि बड़ा सा टी कैंटीन आ गया है और एक मग आ गया है जो हमारा टी मग्स होते हैं. अब सारे बच्चे देख रहे हैं, कैडेट्स देख रहे हैं कि अलग अलग सबके लिए आएगा. जो सबसे पास था उसने अपने लिए चाय पोल किया एंड पीना शुरू किया. इंस्ट्रक्टर ने कहा ये आपका नहीं है, पास कराओ इसके आगे, ये सबके लिए थे. That was the time that thing they did not realize कि क्या कर रहे हैं. हमें लगा कि नहीं है तो एक ही कप में हम सबको पिला रहे हैं. बट आफ्टर 6 महीने 1 साल की ट्रेनिंग के बाद ना आपको रियलाइज होता है कि यू आर अबव कास्ट, यू आर अबव रिलीजन, यू डोंट थिंक मेल है या फीमेल है, किस बैकग्राउंड से आया है, अमीर है गरीब है. अच्छा उसमें मेल फीमेल भी साथ हो गई थी. Yes. So Air Force Academy is for male and female both. So you forget everything. You just know that we are cadets. We are undergoing training. Our main aim is to clear this training, become officers, and serve nation. That's all. That's all. And जिनके साथ आपने वो किया है, मैं अगर उनसे 15-20 साल के बाद भी मिलती हूँ, इनफैक्ट आप वो ही कैडेट आपके अंदर फिर से अच्छा जिंदा हो जाता है. तब नहीं आपको लगता है कि आज के डेट में वो 15 साल पुरानी बात होगी. यू बिकम दैट कैडेट अगेन बिकॉज यू हैव लिव्ड दोज मोमेंट्स. जस्ट लाइक मीटिंग योर स्कूल फ्रेंड्स, हाउ यू गो बैक टू दैट सेम नोशन, राइट. आप एकदम बच्चे बन जाते हो तो ऐसे आप फिर से कैडेट बन जाने जब वो समझते हैं. सो वो टीम बिल्डिंग आज से मुझे हफ्ते 50 साल बाद भी अपने किसी होस्टमेट से मिलूंगी तो उसी प्यार और उसी रिस्पेक्ट एंड उसी इमोशन के साथ मिलूंगी जो हमने एकेडमी में किया. अभी होता है तो लाइक यूनियन वगैरह होता है. Of course, we keep meeting. अभी very recently last year. तो अभी वो यूनियन होता है तो. Yeah, अभी को we wouldn't want to use any of our postmate because we are living in different geographical location. So जब भी टाइम मिलता है we go, we spend some time, we live our career days and feel happy about it. आज जगह like I don't know if you guys this like how many years you are. I'm 37 years. Sure. And it was like. नहीं बिल्कुल. मेरे को लगता है कि मैंने अपनी लाइफ के हर साल से बहुत कुछ सीखा है. हर साल ग्रो हुई हूँ, चाहे मेरा मिलिट्री करियर हो. मैं ये पूछने वाला लेट मी आस्क कि आपने अभी काफी जगह आपने देखा है जस्ट यू सेड यू वर पोस्टेड इन राजस्थान इन नॉर्थ ईस्ट. अभी बैठ के लाइक मैं बहुत तो बुजुर्ग नहीं हुआ फिर भी जितना भी आपके एक्सपीरियंस है क्या लगता है पीछे मुड़ के क्या लगता है. I'm just proud of myself. I think, and it is not coming from a place of arrogance. It is coming from a place where I never thought that I would be able to reach this reach. And when I say this, I am not going to stop growing. I will continue to grow. Growth के chance हमेशा work. Nobody is perfect. But when I look back, even if I tell you Zeen, अगर मेरी लाइफ का कुछ ऐसा भी एक्सपीरियंस है which didn't go as per me, where I have suffered, ऑपरेशन जो सही नहीं होंगे, पोस्टिंग जो अच्छी नहीं लगी, सीनियर्स जो किनके साथ कभी आपका इट इज नॉट ऑलवेज यू एग्री विद योर सीनियर, कभी डिसएग्रीमेंट भी हो गया, रिस्पेक्टफुली डिसएग्री करना किसी के साथ. अगर वो भी हुआ है ना तो देयर आर लेसन्स दैट आई हैव टू लर्न. I think biggest lesson in my life would be that not everyone is going to support you every time. Okay, at times you have to support yourself. You have to become your own pillar. And expect करना कि हमेशा जब आप प्रॉब्लम में हो कोई दूसरा आके आपको सहारा देगा वीक इंसान की विषय में. कई बार अपने लिए खुद खड़े होना पड़ता है, किसी को बिना बताए कि मैंने अपने लिए खड़े थे.
कई बार अगर आपको लगता है कि किसी की कोई चीज़ आपको कोई करने के लिए कह रहे हैं, यू डोंट एग्री. It is always good to very politely, respectfully go and tell that person, sir, I think this could have been done. क्या हम ये कर सकते हैं? हाँ बोलेंगे तो बहुत अच्छी बात है. और अगर कुछ वो बोलते हैं कि नहीं ये नहीं कर सकते हैं, my cat is distracting. क्या बात है? पहला. उठा सकते हैं आप बताओ. ये क्वेश्चन क्या है? कितने साल के ये? She's 3 years old. तो ये पर्शियन क्यों बोलते हैं? पर्शियन से आता है? ये इनकी एक ब्रीड है. अच्छा. हाँ. What's So, it? ऐसे कभी मेरे पास आती नहीं है. I think it is all because of camera. She has not sat here. Typical girl, हाँ? Yeah, we got a guest. I think she doesn't get No, she won't. Yeah. it. Let's come into the questions. Yeah. एक आपने जो चीज़ अभी बताया ना, मैं भी रिसेंटली एक वीडियो देखा था, उसमें वी ऑल और उनका एक्स प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी को किसी ने पूछा था कि आपसे, एक इंटरव्यू ने पूछा, सर आपसे मैं ये सीखना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति को आप कैसे समझाते हो, इतना कुछ कैसे बोलते हो. तो ही सेड अ ब्यूटीफुल लाइन कि अगर सीखना है मेरे से तो शांत रहना सीखो. ये लगता है, महसूस होता है. हर चीज पे ओपिनियन देना जरूरी नहीं. बट जब एज पे जब हम रिबेल होते हैं, बिल्कुल होते हैं. ये टाइम के साथ ही आता है. अभी मे भी जब बैठ के मैं आपसे बात कर रही हूँ, मे भी आज से 10 साल बाद में ये नहीं होंगी, मैं कुछ और होंगी. मैं अपनी ही बातों को, हम अपनी ही बातों को फिर से रिपीट करके सोचते कि मैंने उस टाइम ऐसा क्यों किया. यू नो, सो दैट्स द ओनली साइन दैट दे आर चेंजिंग विद टाइम. बट उस मोमेंट में हम जो करते हैं उसको जस्टिफाई कर सकते. सो एज के साथ एक्सपीरियंस ना को या अच्छा हो, अगर हम सीख नहीं रहे, लेसन्स ड्रॉ करके अपने माइंड में नोट नहीं कर रहे हैं, सो वी आर नॉट डूइंग दिस गुड और बैड. सिंपल. एक और चीज जैसे मेल्स में होता है, आई डोंट नो, आई वांट टू आस्क यू विद पर्सपेक्टिव फ्रॉम अ फीमेल. जैसे मेल्स में होता है ना, यू बिकम arrogant or aggressive in the adolescence phase. हर मेल्स होता ही है. Then with time, like I'm around 30s, अब मुझे लगता है मेरी उम्र बहुत कम हो गई. अब मैं शांत हो गया. मुझे अगर कुछ भी बोल रहे हो तो फर्क नहीं पड़ता है. If that person is not close to me, females may dislike that. Females are immature in this way. See, I think as a male or female, ये थोड़ा सा individual person. Not every male would be arrogant when they are young, and not every male or female you will meet. But arrogant में ये भी होता है कि मेरे को सब आता है. वो जो एक वो होता है ना कि you know I want to be the boss. मैं धीरे धीरे दुनिया जब आप पर्सपेक्टिव ऊपर से देखते हो ना चीज़ों को, जो जितना ट्रैवल करता हूँ. मैंने कितना क्लोजली मेल ऑफिसर्स के साथ काम किया है. ऑफ कोर्स रेडियो ऑफिसर्स भी, मैन मेल ऑफिसर्स, एंड फॉर दैट मैटर मेरे इतने सारे सबऑर्डिनेट्स जो साथ में मैंने काम किया है. इट इज़ वेरी इंडिविजुअल. आई हैव सीन मोस्ट हम्बल मेल ऑफिसर्स हु हैव अचीव्ड सो मच, स्टिल दे वोंट पोस्ट ऑन. इससे रिसेंटली एक होता है कि more you travel, the more you mature. The more you experience, जितना आप एक्सपीरियंस करेंगे ना उतना आप सीखेंगे लाइफ में कि लाइफ आपके हिसाब से नहीं रहेगी. सो अगर आप ये बोल रहे हैं ना कि मैं तो ये करके दिखाऊंगा, यू शुड नो कि हर बार वो नहीं पाए. हमेशा प्लान ये काम नहीं करता. सो फ्लेक्सिबिलिटी, वाइजनेस एंड आई वुड से इंटेलिजेंस उसमें है टू एक्सेप्ट दैट लाइफ इज नॉट गोइंग टू गो इन योर फेवर इन द टाइम. You have to be ready for second option or maybe third option. So it is not, again coming back to your question, it is not male, and I've seen many Arabian ladies also good. It is not, I won't say that it is everything related anyway. Because you know social media pe na, this is very out of topic permanence. Social media pe I've seen there are many posts demeaning or putting pressure on males and men. क्या क्या करेंगे ना,
कितना कितना प्रेशर है उनके ऊपर। एक पल के लिए सोच के देखिए कि हम इंडिया जैसी कंट्री में अगर एक लड़की है और एक लड़का है, हम एक लड़की को ऑप्शन देते हैं कि बड़े होके तुम जॉब करना चाहते हो या नहीं करना चाहते, एक ऑप्शन होता है। मेल के पास क्या वो ऑप्शन है? मेल अगर आज की डेट में बोल दे कि मैं अगर आज की डेट में बोलती कि नहीं मैं काम नहीं करना चाहती हूँ, मैं कुछ 1 साल का ब्रेक लेना चाहती हूँ, मेल अगर ये बोलेगा ना, मे बी उसकी फैमिली समझ जाएगी, एक्सटेंडेड फैमिली और आसपास की सोसाइटी विल स्टार्ट इमीडिएटली कि हाँ आप ऐसा। सो वो देखो इस चीज़ से ये जो जेंडर रिलेटेड चीज़ें हैं ना, लड़कियों की इक्वल राइट के लिए फाइट करती, थिंकिंग इज ओके, बट एट द सेम टाइम डोंट ओवरबर्डन देम दैट ही इज द ओनली वन हु इज सपोज्ड टू टेक। एवरीथिंग इज ओके, हम इक्वल राइट्स की बात कर रहे हैं, वो सब होना चाहिए, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ पुलिंग डाउन मच जेंडर। वी कांट बी demeaning them, shaming them, saying कि male is the provider. He is the one who is supposed to take care of the family. Why? If a lady is educated, she can very well do it. Nobody should be pulling a lady back from it. I think for me, feminism का plain simple definition is, अगर एक लेडी घर में हाउसवाइफ बनके रहना चाहती है, रहने दो। अगर एक लेडी बाहर जाके काम करना चाहती है, करने दो। अगर एक लेडी फैशन वर्ल्ड में जाके मॉडलिंग करना चाहती है, करने दो। सोशल सर्विस करना चाहती है, करने दो। बेसिकली जो वो चाहती है वो करने। फेमिनिज्म के नाम पे जो लेडी नहीं काम करना चाहती, घर में हाउसवाइफ बनकर अपनी फैमिली और बच्चों को टेक केयर करना चाहती है, उनको मत पुश करिए ऑफिस जाने के लिए। और जो ऑफिस जाना चाहती है उनको मत पुश करिए घर में हस्बैंड को बच्चों में खाने के लिए। आई थिंक दैट इज प्लेन सिंपल इक्वालिटी। वही अभी ये जो आप बात कर रहे हो ना, अब ये मैं ज्यादा नहीं बोल सकता क्योंकि फिर एज अ मेल वो अलग पर्सपेक्टिव है। सो आई वांट टू आस्क दिस क्वेश्चन कि इतना क्लोज समझ रखा था व्हेन यू got married, when you saw a male and you know तब ये समझ आया? No, I think I'll tell you something. फोर्सेस ना ऑफिसर्स को क्रेडिट देते हैं हमेशा। जो लेडीज उनके पीछे काम कर रही है ना, ऑफिसर्स के पीछे, उनको क्रेडिट बहुत कम मिलता है। And I have met, interacted with one of our Fauji wives. They are doing so much selflessly. I'm not. अगर उनको जॉब करना है कि उनके अपने हस्बैंड बच्चे को छोड़ के जॉब करने जाना पड़ता है क्योंकि हस्बैंड की पोस्टिंग चेंज नहीं हो सकती है। तो अगर उनको जॉब पति को और बच्चों को चूज करना है तो उन्हें अपनी जॉब सेक्रीफाइस करके उनके साथ रहना पड़ता है। सो नोबडी इज टॉकिंग अबाउट कि उनका सेक्रीफाइस का हमेशा बैक सीट पे चला जाता है। दे हैव टू ऑलवेज से कि हम भी इतना कुछ कर रहे हैं, rather than we should say कि ये लोग कितना कर रहे हैं। They are supporting, men in uniform. So जब मैं उनसे interact करती थी, I realized they are actually doing this selfless. Being a mother is not easy. It is very difficult. Salary नहीं मिलती आपको, ठीक है, कोई हर दिन थैंक यू भी नहीं बोलता है, बट आपको सेल्फलेसली करते रहते हैं। हाँ, इन जॉब में हर दिन थैंक यू बोलता है, एटलीस्ट कुछ नहीं तो मंथ एंड में सैलरी तो आ जाती है। एप्रिसिएशन, फाइनेंशियल फ्रीडम कहीं ना कहीं से आपको एप्रिसिएशन दे रहा है ना कि आपको किसी ने अप्रिशिएट किया आपकी क्वालिटीज के लिए, बट वो उनको नहीं पता। तो मैंने इंटरेक्टेड विद देम, आई रियलाइज्ड कि दे आर हैप्पी व्हाट दे आर डूइंग। लेट्स नॉट पुश देम कि आप क्यों कुछ नहीं कर रहे हो। सो आई थिंक जेंडर इक्वालिटी इज कि जेंडर को डिसाइड करने दो कि उनको क्या करना है, rather than मैं डिसाइड करूं कि एक लड़की को क्या करना है या एक मेल डिसाइड करे कि उसकी वाइफ को क्या करना है। सिंपल। That's very good problem. अब ये बताओ, how you both met? You and your husband. How about this relationship? I think आपने very से Not yet. How you? It's a whole. So me and my husband, we did our training together. We were in heading together. We are Force Base, and he is a helicopter pilot. And I took retirement. He still had it in. But yeah, I think we met at academy. But academy was not the place from where anything started.
After that, when we met on TDs, temporary duties, where we go for exercise and everything, from there we started. But it's not a long friendship like school. No. We met through Air Force. Yeah. So अभी जो आप चीज बता रहे थे ना, you saw many of the wives here and there, how they are matching up. I think कुछ रोल अभी वो आपके हो रहे हैं. You're not in the service. And करके बहुत सारी चीजें आती हैं तो मैं that's the reason अभी ज्यादा समझ में आया मुझे. नहीं, आई कहती हूँ, मुझे शायद ही इसलिए समझ में आया बिकॉज मेरे हस्बैंड उन लोगों में से हैं जो घर का काम खुशी खुशी करना है. तो मैंने ये दूसरा साइड देखा कि हर आदमी को हम जैसा बोलते हैं ना कि घर का काम नहीं करते, वो कुछ है जो नहीं करते. नहीं क्या वो है like I love to cook. मुझे बहुत बढ़िया लगता है. इतने सारे लोग हैं जो घर में कर रहे हैं और फिर वो देखते हैं कि यार हमारे बारे में क्या बातें करेगा. सो देयर आर, आई एम श्योर कि अगर इसको बहुत सारी लेडीज देखेंगी वो वाउच करेंगी क्योंकि हस्बैंड उनकी हेल्प करते हैं घर में. और स्टॉप दिस बिजनेस की लड़के घर में हेल्प नहीं करते, मेजोरिटी नहीं करते होगी, इसलिए ये बाहर आ रहा है. तो देयर आर मेनी जो करते हैं. करते शो में ऐसे वीडियो में नहीं चलता. एंटरटेनमेंट नहीं मिल रहा होता तो नहीं चलता, बट देयर आर मेनी जो करते हैं. So I saw this side of this, and at the same time, I have so many friends who are housewives, so selflessly working for their family, husband who are serving in Air Force, Army, Navy, where they were taking care of kids and not cribbing about it. They are happy. So why should we decide that वो घर में है तो खुश नहीं है या वो ऑफिस में है तो खुश नहीं. So इसलिए ये सारे एक्सपीरियंस जब आप फ्रेंड्स बनाते हो, जब आप मैंने अपने क्लोज वंस का देखा नेचर कि वो जॉब के साथ घर भी करना था, घर का काम करना था, कई ऐसे मेल हैं. सो दैट गेव मी दैट इनसाइट कि इट्स वी शुड नॉट पुट दिस टैग ऑन मेन. यू आर नथिंग ऑन मेनी जो काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे से कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं घर पे. अभी एक और चीज भी बोला जब हम लोग बात कर रहे थे, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट. अब ये आपने जब वो चीज समझा देखा, मेरे दिमाग में मुझे करंट सिचुएशंस में हुआ. मैं बहुत ऐसे घूम रहा था एंड आई वाज डूइंग पॉडकास्ट और मेरे पर्सनली कुछ काम चल रहे, वन से हट के मैं जिंदगी को सोच नहीं रहा हूँ. आई वाज स्टिल डाइसी कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. एंड यू नो इन हमारे इंडिया में अभी भी है 30 इयर्स अप सेटल सो मच प्रेशर. अब तक 1-2 साल के अंदर ये भी हुआ था. मैं ना रिवर्स करता हूँ चलता हूँ. कभी-कभी लगता है मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ, कभी-कभी लगता है कि क्या वो सही में ठीक कर रहा हूँ. The only person you have to justify with yourself. किसी और को justify करने की जरूरत नहीं है. आपको I tell you something, लाइफ में ना तो आपने कई बार देखा होगा ना कि लोग बोलते हैं कि ओवरनाइट सक्सेस मिल गया, रातों रात करोड़पति बन गया. यू नो उसका बिजनेस कुछ भी नहीं था, तो बिलियनियर बन गया. सुबह उठा एंड ही वाज अ रिच मैन. नहीं होता. आपने किसको एज ए रिच मैन देखा? आपने जब वो स्ट्रगल कर रहा था ना पिछले 10 साल से 5 साल से, वो नहीं देखा बिकॉज वो उतना शाइन नहीं करता ना जितना सक्सेस शाइन करती है. तो वो नहीं देखा. सक्सेस दिखता है, वो दिखता है इसलिए. सो आपको जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं. लाइफ में वो छोटे 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 स्टेप्स हैं जो एक बड़ा मुकाम पे आपको लेके जाते हैं. एकदम से नहीं होता है कि आज मैं उठी और मैं सेलिब्रिटी बन गई. FRI नहीं बन. आपने कितने बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेसेस हैं आज हम उनको देखते हो कहते हैं कि यार इस मूवी से वो हिट हो गई. नहीं, वो नहीं हुई उस मूवी से हिट, वो उससे बहुत पहले से काम कर सकते हैं. तो वी डोंट नो अबाउट दिस स्ट्रगल. तो वो लगता है कि काम करते जाओ, बस काम करते जाओ. एंड इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये मत सोचो कि बड़ा क्या है छोटा क्या है. छोटा काम भी, छोटे छोटे काम ही मोस्ट ऑफ द टाइम आपको बड़े मुकाम पे ले जाते हैं. क्योंकि छोटे काम करते वक्त आपको ह्यूमिलिटी चाहिए होती है, वो कि नहीं मैं ये छोटा काम फुल एफिशिएंसी से करते वक्त छोटी नहीं बन जाऊंगी. मैं उससे भी कुछ सीख के आऊंगी और अपने बड़े काम में छोटा सा कंट्रीब्यूट करूँ. और सेलिब्रिटीज किसी कर जाए वो लाइक यू वॉक विद दीपिका पादुकोण एंड देन व्हाट इफ यू टेक योर शीना देन कम सच. It was a new world for me, I would say. Because क्या महसूस हुआ जैसे आप भी हमारे तरह उनको टीवी में या कहीं भी सोशल मीडिया पर्सनल लाइफ में जब आपने उनको देखा है, यू से द लाइन दैट टाइम जब मैंने पूछा
they are successful because they're really professional. You even so. बिकॉज हम देखते हैं कि डिसिप्लिन सिर्फ कुछ ही इंडस्ट्रीज में है और कुछ ही गवर्नमेंट जॉब्स में है, मिलिट्री में है. डिसिप्लिन हर जगह डिसिप्लिन का तरीका थोड़ा सा चेंज. मिलिट्री का डिसिप्लिन अलग है, अगर आप कॉर्पोरेट में कर रहे हैं तो वो डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी अलग है. Same goes for film stars actually. Whatever they are doing, they are putting a lot of effort. It is not that हर दिन जिम जाना हम कर सकते हैं. कितने लोग हैं जो 5वें दिन गिव अप कर देंगे. फर्स्ट जैन तो सब रेजोल्यूशन बनाते हैं कि हम जिम जाएंगे. कितने लोग हैं जो 31 दिसंबर तक जिम जा रहे होते हैं. नहीं, they have to do it whether they like it or not, because we want to see them in perfect of body shape, male, female or whatever. That discipline. Then जब मैं उनके साथ काम कर रही थी, मैंने देखा कि how much is their attention to detail, like how much they want to really learn about. They used to talk about my experiences. छोटे छोटे scenes में I remember, especially for Anil Kapoor sir, he was so particular about it. He used to come and say कि क्या मैं इस voice modulation में बात कर सकता हूँ. वो उतने ही फुर्तीला रहते हैं जितना वो बहुत अच्छे हैं. वो सेट की जान होते हैं जो वो सेट बनते हैं. He's a very sweet man, very dedicated, and I would say much younger than his age. He's a jolly person. इट्स नॉट इजी ना. मतलब सेलिब्रिटीज की लाइफ मुझसे अच्छी लगती है. हर दिन ट्रैवल करना, फिर दुनिया को सामने खुद को प्रेजेंट करना ना कि यार यू हैव टू बी दैट थिंग यू ऑलवेज हैव टू बी. हाउ इज दैट इन रियलिटी? So like any other profession, मैं आपको उस आपके इस क्वेश्चन को मिलिट्री लाइफ से कोरिलेट करके बताना. आप किसी सिविलियन से बाहर जाके पूछिए कि फौजी लाइफ कैसी है. We'll only talk about our privileges. कि यार उनका तो बहुत स्विंगी होता है, उनका तो बहुत अच्छा होता है, उनको तो सब कुछ फ्री में मिलता है. वो तो बिगेस्ट मिथ आपको पता है, जो लेटेस्ट पता चला है. लोग सोचते हैं कि आर्म फोर्सेस पर्सनल डोंट पे टैक्स. कैन यू बिलीव इट? ये भी सोचते हैं वो कि हम लोग टैक्स नहीं देते हैं. हमारा टैक्स गवर्नमेंट हमारा जो पे स्लिप आता है डिडक्ट होके आता है. हम इसमें से 1 रुपया भी ऊपर नीचे नहीं कर सकते. तो लोगों को लगता है हम टैक्स नहीं देते. सो देखिए बाहर से कितना अच्छा लगता है ना. बट अभी जब हम बात कर रहे हैं, हम पहले भी बात कर रहे थे, तो मैं आपको बता रही थी कि हम कैसे -°C टेम्परेचर से 50°C में एक रात से दूसरी रात पे मान जाते हैं. एंड कोई नहीं पूछता है कि कैसे मैनेज कर रहे हो, कैसे तुम डील कर रहे हो इससे. वी आर ट्रेन टू डू दैट. वी आर नॉट आस्किंग फॉर एनी एप्रिसिएशन फॉर व्हाट वी We are just saying कि जिनको पता नहीं है, don't criticize Fauj with their assumptions कि आपको तो इतना सब कुछ नहीं. That should not be. Appreciate मत करिए, but criticize भी मत करिए. Let us do our job. हमने choose किया है, हमें कर देनी है. बस that's what we want. लास्ट क्वेश्चन. ये मैं ब्यूरोक्रेट्स को भी पूछता हूँ. आई थिंक ये खुद मैंने महसूस किया. फोर्सेस के मैंने इतना महसूस नहीं किया, तो आई वांट यू टू डिस्क्राइब जो ग्लोरीफियस लाइफ है. सो ग्लोरीफाइड जो होता है कि जो हम देखते हैं ना, वो गाड़ी से निकल रहा है, या इवन द एयरफोर्स और जस्ट स्पेक्स लगा रहा है, कोई फीमेल ऑफिसर या नकल शॉट होता है कि जो हम देखते हैं ना, बट कहीं ना कहीं मैंने देखा है हर व्यक्ति जूझ रहा है या क्योंकि आप दुनिया के सामने खोलने पर हर किसी एक एजेंडा है आपके साथ दोस्ती करने का या कुछ इरादा होता ही है. Everybody will come with reflection and with some favor. At times with motive. वो क्यों होता है? वो अकेलापन महसूस होता है, वो जूझना होता है. At times with motive. वो फोर्सेस में भी It is human trait. At times life में हर किसी को लगता है कि मैं अकेला ही या मैं अकेली हूँ. हर किसी को लगता है और वो लगना बहुत जरूरी है. ये just happy महसूस. Yeah, it's a good distraction. If done in a controlled manner, it's a good distraction. Social media cannot be life. But जब तक आप उसे as a entertainment ले रहे हो, it is good. And coming back to your question कि life में कई बार लगता है कि you are alone, वो लगना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि आप का ना अपने आप पे जो कॉन्फिडेंस है, तो तभी आता है जब वो टाइम आए जब आपको कोई हेल्प करने वाला नहीं.
हमेशा कोई हेल्प करने वाला आ जाएगा, तो अपना डिसीजन कि मैं अपने डिसीजन लूंगी लाइफ में तो कैसी होंगी वो कभी देख लेंगे टू लाइफ, क्योंकि वट एवर आई एम डूइंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय माई फादर, माई मदर, माई हस्बैंड, माई किड्स, माई फैमिली, माई सिस्टर्स, नॉट रिक्वायर्ड ऑल माई फ्रेंड्स. नहीं है सर, बहुत अच्छे हैं वो लोग और बहुत सक्सेसफुल हो गए वो लोग जिनके पास फ्रेंड्स हैं, बट फिर भी उनको कभी कभी लगता है कि ये डिसीजन मुझको ही लेना है, कोई नहीं है मेरी हेल्प करने के लिए. होना चाहिए लाइफ को, तभी पता चलता है कि आप खुद क्या, you know. Recently in one of the reel, Shahrukh Khan said कि लोग हम बोलते हैं ना कि we have to reach the top. It's very rolling when you reach the top. It's like it's better you enjoy when you reach the top. So it's very when you reach the top. एंड हर किसी को जरूरी नहीं है कि हर किसी की चाह हो कि वो टॉप पे जाए. नहीं मन कई लोग को नहीं बनना है, कई लोगों को सेलिब्रिटी नहीं बनना है, किसी को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नहीं बनना. दे आर हैप्पी इन देयर लाइफ, बट जो वहां गए हैं दे हैव सैक्रिफाइस्ड. जिसको नहीं बनना है वो ये नहीं बोल सकता कि जो ऊपर गए हैं वो ऐसे ही बन गए. इट इज देयर चॉइस. आपको नहीं बनना है, आपकी चॉइस है. लेट्स नॉट क्रिटिसाइज दैट. Thank you so much. I hope you liked in the podcast. How was your fit? I loved it. I think it was a very candid discussion with him, which I liked the most. Never felt that I'm meeting you for the first time. It was very comfortable. Loved it, and for a change, it was not only about my financial life and everything, but about life. Life in general. So I loved it. मुझे कभी-कभार लगता है कि you know when I started मुझे लगता था कभी ये पॉडकास्ट चलेगी, एक तो मैं स्क्रिप्ट नहीं बनाता हूँ, मुझे पता भी नहीं होता पूछना क्या है, और मैं ऐसे ही रैंडम सवाल पूछता. मुझे लगता है कि कोई इरिटेट ना हो जाए इसके बाद. No, I don't think. I think जैसे हम लोग फौज में बोलते हैं कि ट्रेनिंग वगैरह हमारी मूवी थी तो हमारे इंस्ट्रक्टर्स कहते थे नो क्वेश्चन इज स्टूपिड, आस्क व्हाटएवर यू वांट टू आस्क, अदरवाइज हाउ विल यू लर्न दो स्टूपिड क्वेश्चन. दिमाग में ही रह जाएगा और किसी दिन आप उसको सीखने का टाइम जब चला जाएगा तब वो आप किसी के सामने उसको बोलेंगे. देन दैट स्टूपिड क्वेश्चन विल टर्न इनटू एम्बैरेस दैट डे. सो तब सीख लो जब कोई बोल रहा है कि सीख लो. सो नो क्वेश्चन इज स्टूपिड. आप कुछ भी पूछो, सामने वाला बंदा, स्पेशली इन अ पॉडकास्ट काइंड ऑफ सेटअप, you tend to share your experience. And learning from someone's experience is you are blessed if you can do it. Because most of the people make mistake and then learn, right? Learning from someone's experience is someone who can do it is geniuses. So actually क्या होता है कि हम लोग जब भी कोई आर्म फोर्सेस में जो भी ऑफिसर कमीशन होते हैं, we get confirmation of service from the President of India. So after 6 months, we get certificate signed by current President saying that your service is confirmed now. So these are those certificates, and these are few certificates जो हमको जब हम कोई बहुत important course करते हैं तब हमको मिलता है. It is like a small appreciation from organization side to motivate officer कि आप continue to do this appreciation. Yes. अच्छा ये आपकी मैंने Yeah, this is It's a year old. Yes. So this was a supervisor course that I did, and for fighter controllers. And when I did that, this was given to me from the. आप लोगों को सिखाते हैं to fly? So हमें अंदर के सिस्टम के बारे में सब पता होना चाहिए. We do go on sorties for familiarization, not on daily basis. Our daily base bread and butter is to control air combats, not to fly during the combat. एक अजीब सवाल पूछूं. मैंने रिसेंटली ना कुछ दिन पहले एक वो देख रहा था जैसे ATC के कमर्शियल फ्लाइट्स में they crack jokes with the pilot. Yeah. You know, कोई एक पायलट था and ATC उसको बोलता है hey today is your anniversary so you are flying, your flight is not scolding you like ऐसे आप लोगों में भी होता है? So I'll tell you, at times, rarely we do all these things. Because जिन लोगों के जो फ्लाई कर रहे हैं, जिनको मैं कंट्रोल कर रही हूँ, हम शाम को उन्हीं के साथ पार्टी कर रहे हैं. वो ही मेरे पोस्टमेंट्स हैं, वो ही मेरे साथ डिनर कर रहे होंगे. At time my husband is flying, I'm controlling. Or many times. So how like you become formal? You have to be very formal. Anything and everything that we are saying when I'm controlling from ground and when pilot is in air, everything is recorded.
every word that we speak, we are trained to say it in a manner. अच्छा So हम जो जिस तरह का अभी जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, जब मैं किसी जहाज को कंट्रोल करूंगी कॉम्बैट के टाइम पे, I would not be using this type of language. It is a very formal, crisp, concise. एक और ऐसे सवाल हाँ, शायद ऐसे भगवान ने ना करे एक्चुअली ऐसे कि आप और आपकी रिश्ते थोड़ा नोकझोंक हो गया हाँ। एंड दैट डे आप लोग बात कर रहे हो तो आते हैं इस तरह से नहीं। प्रोफेशनल इस बारे नहीं आता है। एक बार यूनिफॉर्म पहन ली, ऑप्स रूम में एंटर कर गए, हस्बैंड, फ्रेंड, कुछ भी क्लोजेस्ट फ्रेंड इज जस्ट अनदर ऑफिसर, सिंपल। घर में कंटिन्यू बात में राइट दैट भी और ये आपके शौक है ये तो आपको पता है फौजी घर हम लोग जहाँ जाते हैं we collect stuff. ये that friendly is very Yeah, so we had gone to Istanbul, Turkey. So ये वेटिंग वहाँ से लेके आए थे, इजिप्ट से हम लोग को पिरामिड से लेके आए थे। ये abroad travel or big for personal use at times एक्सरसाइज के लिए गए थे, तो इजिप्ट वाला एक्सरसाइज के लिए गए थे, वहाँ से दिखाए थे। बाकी योर पर्सनल लेजर के लिए ट्रैवल कर रहे थे उस टाइम पे। एक्सरसाइज की कौन सी कंट्री है आप सो मैंने जब एक्सरसाइजेस किया था तो सारा हमने अपने इसलिए पिकअप बीइंग अ वेरी sorry still I will not tend to talk more about it. have you ever made the officers from other countries Yes. what's the difference you feel like उनकी और हमारी is जैसे मैं एक एग्जांपल There is military everywhere is same. Core of military everywhere it remains same. जैसे when I was doing a podcast with a Cobra officer तो he said कि उनके ट्रेनिंग चल रहा था US forces के साथ but he said कि they cannot accept यहाँ पे तो ये लोग जंगल में भी ना they can put this in the water but they will go with my cheese and back to other वो नहीं है उनमें So वो हम लोग ना because of our nature as Indians we are very hardworking. I'll give you an example कि अगर हमारा radar system हल्का सा problem भी कर रहा है ना, we'll continue with operation. We look for alternatives. We look कि अगर ये नहीं हो सकता तो मैं ये करती हूँ, ये नहीं हो सकता तो वो करती हूँ. I'm not saying कि वो लोग नहीं करते हैं, but then उनका वो SOPs इतना नहीं है. हमने इतने पुराने सिस्टम्स पे भी कंट्रोलिंग किया है. I remember one of the foreign controller asking me Thank you so how much. are you doing controlling on this system? I'm not able to make out anything. What information are you giving? So we are trained. We are trained to do operations on latest of the systems also, and ancient systems also जहाँ पे कुछ नहीं बचा, but still we were continuing. अभी तो वो भी phase out हो गए हैं. So that's the charm. We know both the sides. ये आपके कलेक्शंस ये मेरे this is one of my favorite okay. This but is मैंने इसके लिए डॉक्यूमेंट्री सब वो देखा था because I have dyslexia तो मैं dyslexia में पढ़ने लगा oh really? मतलब बचपन में like when I was in class 11 12 ना पेरेंट्स को लगता था ये बहाना दे रहा है पढ़ाई नहीं करनी है but time I have realized this don't believe in class 12 एक मेरे मामा जी थे उन्होंने कैलकुलस पूरे मुझे रटवाया मतलब मेरा है ना आप कुछ बता दोगे इंस्ट्रक्टर मैं कुछ देख लूंगा मुझे हो जाएगा When I start reading, मैं भूल जाता हूँ 3 पेज के बाद क्या पढ़ा है। इसलिए कोई डॉक्यूमेंट अगर मुझे पढ़ना हो तो मैं बोल देता तो मुझे फिर बता दो। So it is so nice for you, ना, that at this age you have access to platforms like Netflix, Prime, documentaries जहाँ ये podcast जहाँ पे इतना सुन के सीखने के लिए मिलता है, देख के सीखने के लिए. You don't have to be bookworm to learn. बट स्कूलिंग में दिक्कत होती है। हाँ, yeah. डांट भी पड़ती है। But I think वो टाइम आ गया है जहाँ पे पेरेंट्स also accepted कि पढ़ाई ही सब कुछ नहीं है. There are other things also other than पढ़ाई, चेंज हुआ है। वो चेंज डेफिनेटली है. तो ये आपके कलेक्शन में So ये मेरे हस्बैंड की कलेक्शन है. इस वक्त मैं स्टार्ट शो माय फेवरेट बुक. So this book is my favorite. ओह The Indian women, and इसमें कई सारे हमारे इन्फ्लुएंशियल लेडीज सबका मेंशन है जिन्होंने अपने टाइम पे they were the first one to do what they did. A lot of this is lot to learn on. And I'm very sure आज की डेट में we have reached that stage where we have house helps for ladies who are working.
उस टाइम पे आई एम वेरी श्योर कि इनके पास वो फैसिलिटी नहीं था टू डू व्हाट दे डिड. सो दे आर, यू नो, एक्चुअली आर टॉर्च बेयर्स.